नमस्कार। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। सीजन 2 और इस बार इस कार्यक्रम का नाम है इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 2। 4 शहरों के बाद अब हमारा आज का पड़ाव है पुणे। दिल्ली, आगरा, लुधियाना और अहमदाबाद में हमें जिस तरह का रिस्पांस मिला, अलग अलग मुद्दों पर हमने वहां पर चर्चा की। आज हम पुणे में हैं, जिसे इस शहर को यहां के एंटरप्रेन्योर्स के लिए जाना जाता है। कई इंडस्ट्रीज को, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस शहर को जाना जाता है। कई इंडस्ट्रीज को इस शहर ने अपने आंगन में जगह दी है। और आज का हमारा यहां का टॉपिक है इंटरनेट, आईटी, B2B प्लेटफॉर्म कितना अहमियत रखता है देश के एसएमई सेक्टर के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं वेलकम एड्रेस के लिए बुलाना चाहूंगा जी बिजनेस के नेशनल बिजनेस हेड रक्तिम दास को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा फॉर द वेलकम एड्रेस। Good evening, everyone. I take this opportunity to welcome you all to this second edition of Emerging Business Forum. As a business channel, we always talk to two target groups. One is the retail investor who has got investments in the financial markets. We try and enable and empower the retail investors in making informed decision making pertaining to financial markets. And the second target audience that we constantly talk to, and as Piyush mentioned just a little while back, is the Indian SME sector. Given that the SME sector contributes more than about 40% to the manufacturing output, more than around 35% to the exports of the country, this is one segment which we have always felt is very core to the growth of the country, and we have always engaged with this target audience through various means, whether it is in terms of ground events, whether it is in terms of on-air shows. We have been talking to the Indian SME sector and bringing forward the various opportunities, various challenges that is in front of this sector of the Indian economy. This year, we are looking at what is it that it will take the Indian SME sector to take the next big leap. With that, I will hand you back to Piyush and hope that you all have a great evening. We would encourage a lot of participation from each one of you so that we can have a more meaningful gathering here this evening. Thank you. चलिए सिंह साहब, अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सारे पैनलिस्ट हमारे स्टेज पर इस वक्त आ चुके हैं। जब बात ऑनलाइन मार्केटिंग की होती है, इंटरनेट की होती है, किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है? हम जब कुछ समय पहले यहाँ पुणे आए तो आप ही के बीच से हमने 2 ऐसे कंपनीज को चुना हमने, जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। वैसे ही विंग्स रेडियो कैब की तरफ से इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर अरुण खालिद साहब इस वक्त मौजूद है। अरुण, मैं चाहूंगा स्टेज पर आए और प्लीज हमें बताएं कि किस तरह से ऑनलाइन आने के बाद से आपको किस तरीके का एडवांटेज मिले और किस तरह से अपने कंपनी को आगे बढ़ाए। Thank you for giving an opportunity to be here. With respect to Wings Travels being online, as you all are aware, we had actually a range of services which started from air ticketing, hotel reservations, and car rental services. Radio cabs is a recent concept actually, and this is actually in the radio cab concept, what we feel is that being presence online, we are able to tap not only the Pune market, we are able to tap the total India market as well as the global market. We get inquiries right from people who plan to enter into Pune, who plan their visits into Pune, and in this way it helps us to generate quite a few inquiries. Every month or every day we have around 20 to 25 inquiries generated out of which are web-based inquiries. When airlines and all slowly started, when the business started reducing, it was basically due to internet. We started to feel the pinch in the year around 2003-2004, where ticketing business and all went down. At that time we realized the power of internet and how it helped the people to reach into the inventories of the airlines directly and make bookings. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पैनलिस्ट मैं चाहूंगा कि अगर उनसे कोई सवाल हो, प्लीज टेक माइक। नितिन, मेरा एक सवाल है कि आपने ये कब रजिस्टर किया था इंडिया मार्ट के साथ और आपको कब से ऑर्डर आना चालू हो गए? हमारे 3-4 वेबसाइट है इंडिया मार्ट पे। तो जनरली व्हाट इज द फीलिंग इज दैट वंस यू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, वंस योर वेबसाइट बिकम्स लाइव, जनरली अराउंड 30 days to 60 days you tend to get पॉजिटिव फीडबैक्स एंड रिस्पॉन्सेज। आपका जो ये बिजनेस मॉडल है उसमें एक बियॉन्ड B2B मार्केटिंग देयर इज समथिंग विच इज
very important, and that is assessment of your service. Yeah. Because your repeat orders and everything, it depends on this. जो सर्विस आपने जो प्रोवाइड की उसके असेसमेंट के ऊपर होता है. Exactly. और ये असेसमेंट जो है वो आपको आगे चल के आपका जो प्लानिंग है उसमें भी मदद करता है. तो ये जो इंडियाकॉम जैसे पोर्टल है, इसमें ये असेसमेंट के बारे में भी कुछ फैसिलिटी है जो आपको फीडबैक आता है और उसके ऊपर आप कुछ एक्शन ले सकते हैं. ऐसी कुछ फैसिलिटी ये पोर्टल में वगैरह रहती है. जनरली हम जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं उसके अंदर एक फीडबैक का तो एक पेज रहता है, तो विच एवर कस्टमर्स एंड ऑल फील लाइक रिवर्टिंग बैक और लाइक वो इंक्वायरी के दे सेंड देयर क्वेरीज एंड ग्रीवेंसेज इन दैट क्वेरी पेज इटसेल्फ. बट अगर हम इंटरनेट के बारे में अगर बात करते हैं, इंटरनेट एज अ टूल, यस इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडिया मार्ट इज one thing, okay fine, like it is an platform where you can register and be present on the net. With respect to grievances, जैसा आपने बताया, because of the net presence, it is so easy for everybody to lodge their grievances or complaints, and which is accessible and readable. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप बिजनेस करें तो उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए. एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से. My name is Prasad. I represent the company Adi.net. Just want to understand what's the percentage of, say, inquiries you receive online to the inquiries you receive via phone and to your corporate tie-ups. The proportion of business that you receive online. Net based is around 25%. 25% inquiries we get on the net. नितिन ने जब ये पूरा डिस्कशन चल रहा था, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था. और ज्यादातर पुणे में मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं कि जो शायद खुद के प्रोडक्ट को बनाते नहीं हैं. इससे पहले कि हम आईटी पे आए, चिराग, हम चाहते हैं इस टॉपिक को इस पर आप बताएं कि जो लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, खुद का उनका ब्रांड नहीं है, लेकिन वो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में है या किसी इस तरीके की सर्विस में, उनके लिए B2B प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे वो इसका एडवांटेज उठा सकते हैं. हमारे एक क्लाइंट हैं जो गार्डन फर्नीचर बनाते हैं. तो बड़े सालों से उनको इंग्लिश स्पीकिंग मार्केट से ऑर्डर आ रहे थे. तो US, UK, so primarily Western Europe, and he was happy with that. Suddenly, उनको एक query आई जर्मनी से. Language he didn't understand. Normally he would disregard it, but he said, चलिए इसका पता करते हैं क्या कर सकते हैं, right? And जब उन्होंने कंसल्टेंट से बात की और वो समझा और फिर उसके बाद एक कोटेशन दिया, it turned out that Germany then became one of his largest export markets. The whole advantage of going online, and I'm not just saying my portal, going online is that it opens up new opportunities for you, right? New markets for you. So एक तो एक नए मार्केट की बात होगी कि आप एक नए मार्केट में आप बिजनेस कर पा रहे हैं. दूसरा है कि अगर आपका एक ओपन माइंड है, ओपन नजरिया है, तो आपको नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने में मदद मिलेगी. राजीव, आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप भी बिलोंग करते हैं. कितना इंपॉर्टेंस आपको लगता है कि B2B प्लेटफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हो सकता है? फ्रेंड्स, मैं खुद भी एंटरप्रेन्योर हूं, सबके साथ शेयर कर सकता हूं कि इंटरनेट और B2B पोर्टल बेस्ट लेवलर्स हैं मार्केट के. ये नए और पुराने का फर्क खत्म करते हैं, बड़े और छोटे का फर्क खत्म करते हैं. एक जमाना था जब केवल रिसोर्सफुल इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेज ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर विश्व में लॉन्च कर सकती थी. आज छोटे से छोटी एंटरप्राइज भी अपने प्रोडक्ट ब्रांडेड या अनब्रांडेड, इट मेक्स नो डिफरेंस, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म का टूल का सहारा लेके पूरे वर्ल्ड में बराबरी के लेवल में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकता है. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू द वर्ल्ड, and you can compete. Suddenly you could be rubbing your shoulders with the best brands in the world. राजीव, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है, क्या जो इस तरीके के छोटे मैन्युफैक्चरर जिन्होंने स्टार्टअप ही किया है या 5 करोड़ 10 करोड़ के करीब उनका टर्नओवर है, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके वो भरोसा भी जीत पाते हैं? अब बड़े मैन्युफैक्चरर हमारे साथ खुद थाइसन ग्रुप से इस वक्त मैं विश्वास साहब हैं, आपके पास कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स आते होंगे जो अपने प्रोडक्ट्स को आपके साथ, अपनी सर्विसेज आपके साथ आउटसोर्स करना चाहते हैं. क्या
वो इस तरीके का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाते, जो बात अभी राजीव ने की थी? I find many times my boys come and tell, this particular product I get it from Calcutta. I ask him, where do you go to Calcutta? Many times I ask him, where do you go to Calcutta? I'll tell you a small example. It's a real concern for me because out of 1,500 crores what I procure, as much as 1,100, 1,200 crores I procure outside Pune. I felt very bad when I took over the procurement department, the entire procurement department of ThyssenKrupp Group for all divisions. We have quite a lot of general managers and vice presidents and all. When they come to me and tell me that, I tell you a very simple example. For a boiler, when you take the steam, through the pipe, there is just a support tubes, It expands and you have got to design in such a way that it expands and contracts. Then he said, we have to order either in Chennai or you have to order in Calcutta. I said, it's ridiculous. See, we are a Pune-based unit, and there must be quite a lot of people here around. And then I started asking them. There is always an easy way for the procurement people to go. क्या हो सकता है? दो होता है. 1, 2, 3. I got 3 quotations. These 3 people, one in Chennai, one in this thing, is over. So this has to change to a good extent, and we have to develop. Change कैसे हो सकता है? हो सकता है, and we have done it. Let me tell you, I don't know whether the gentleman is here. We were always buying. We have a design of a boiler where we suspend the boiler in the top. Okay, that there is a spring assembly. We were always developing from Chennai. From that part. बाद में जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, हम लोग टेलीफोन से बात करते थे 400 किलोमीटर पे, बाद में इंटरनेट का यूज करने लगे, अभी मोबाइल है या फिर हमारा वेबसाइट है, इसके थ्रू हम हमारा प्रोडक्ट या हमारी जो भी एक्टिविटी है वो सभी दुनिया के सामने लाते हैं. तो दिस इज द कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉइज, दिस इज द कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉइज. तो इस तरह से ये सब दुनिया नजदीक आ गई है, ऐसा हमको लगता है. लेकिन अभी मैंने जस्ट मेरा जो क्वेश्चन था कि मेरा खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, मैं किसी कंपनी का वेंडर हूं. आज ये कंपनी का वेंडर हूं, कल उन्होंने काम बंद किया तो दूसरे कंपनी का वेंडर हूं. तो ये मेरा जो घर है ये 50 जगह पे घूम रहा है, मैं स्टेबल नहीं हूं एक तरीके से अगर देखा. हाँ, परचेज जब हम लोग करते हैं, मशीनरी परचेज जब करते हैं तो हम लोग अभी डायरेक्ट पंजाब या गुजरात से, तो उसका हमको फायदा हो गया. हम लोग जो रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं उसका भी हमको फायदा हो गया. लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है या हमारी जो एक्टिविटी है वो सेल करने में हम लोगों को आज भी ये B2B पोर्टल का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है. प्लीज रिवर. तो अगर आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आपको एक थोड़ा ब्रॉड बेस्ड अप्रोच लेने से आपको शायद फायदा होगा. जैसे अभी हमारे कॉलीग ने बताया कि ये गए थे किसी अलॉय मैन्युफैक्चरर को ढूंढने. सो आई थिंक आपका जो प्रेजेंस है ऑनलाइन, देन दैट नीड्स टू बी अ लिटिल मोर ब्रॉड बेस्ड. व्हाट दैट विल डू इज दैट when somebody like him is looking for somebody like you, he'll understand what are your basic capabilities. Instead of saying that I'm a contract manufacturer for this person, what you need to say is that my engineering capabilities are this. I can create these type of alloys, or I can work with these type of alloys. The point that we say in all our communications is that we merely build the connections.